A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is our lecture number 18 from the chapter Triangles. Class is 9th, subject Mathematics, and our today's topic is question number 1 from the second exercise, that is 6.2. Let's read out question number 1. In an isosceles triangle ABC, here we have a triangle ABC. It is an isosceles triangle. Isosceles triangle means that triangle in which two of the sides are equal in length. Isosceles triangle वो ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइड्स आपस में बराबर हो, लेंथ में बराबर हो. तो यहाँ पे कौन से दो साइड्स आपस में बराबर हैं? With AB is equal to AC. Here we have AB equal to AC. Let's mark a line, little small line here. Okay, AB is equal to AC, and we know that ABC is an isosceles triangle. Okay, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. We have bisector of angle B, we have bisector of angle C. This is angle B and this is angle C. We have bisector of angle B, we have bisector of angle C, and these bisectors are joined at, intersect each other at point O. Okay, join A to O. After that we have to join A with O. Then we have to prove two things, that OB is equal to OC. We have to first prove OB is equal to OC. We know that BO is the bisector of angle B and CO is now the bisector of angle C. We have to prove that OB is equal to OC, means these two bisectors are equal in length. The bisector of angle B and bisector of angle C are equal, that's OB is equal to OC. That is the first thing which needs proof. पहली चीज जो हमें प्रूव करनी है वो है कि OB बराबर होना चाहिए OC. उसके बाद सेकंड पार्ट है AO बाइसेक्टस एंगल A. ये जो AO है हमें ये भी प्रूव करना है कि ये जो AO है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर ये आपस में बराबर निकलेंगे तो हम खुद कह सकते हैं कि AO जो है बाइसेक्टस एंगल A. अगर ये एंगल आपस में बराबर निकलते हैं तो देखते हैं ये एंगल कैसे बराबर निकलते हैं, मगर उससे पहले हमें प्रूव करना होगा कि OB OC के बराबर है. तो वो तो फर्स्ट पार्ट है. तो चलिए पहले हम गिवन लिखेंगे, उसके बाद टू प्रूव या टू शो लिखेंगे. चलिए जी, गिवन से स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का. तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. तो चलिए बताइए आप गिवन क्या है. आप क्वेश्चन की तरफ भी देख सकते हैं, आप फिगर की तरफ भी देख सकते हैं. तो हमारे पास तो एक ट्रायंगल है. वी हैव अ ट्रायंगल एंड isosceles triangle ABC. हमारे पास एक isosceles triangle ABC है in which, और उसमें हमें AB equal to AC है. ठीक, AB equal to AC. An isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC.
और कुछ दिया हुआ है? Yes, we have bisectors of angle B and angle C intersecting each other at point O. The bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Also, bisectors of angle B and angle C intersecting each other at point O. An isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC, also bisectors of AB and also bisectors of angle B and angle C intersecting each other at point O. So we have bisector of angle B and bisector of angle C intersecting each other at point O. इसके अलावा ए ओ को भी ज्वाइन किया गया है ना? AO is also joined. ये तो सब कुछ गिवन में है, ठीक। अब हमें क्या शो करना है? What we have to show? We have to show two things. We have to prove two things. First part is OB is equal to OC. That's the first part. फिर second part है हमें AO bisectors angle AO जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यानी यहाँ पे दो बराबर एंगल बन रहे हैं। तो चलिए आगे हम प्रूफ अपना देंगे। चलिए, हमें पता है कि ट्रायंगल ABC जो है इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इजंट इट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे ABC is an triangle ABC is an isosceles triangle in which, जिसमें क्या है, AB is equal to AC। तो प्रूफ में हमने स्टार्ट किया कि हमारे पास ट्रायंगल ABC है जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसमें AB बराबर है AC के। AB is equal to AC। अगर AB AC के बराबर है तो क्या इन साइड्स के जो अपोजिट एंगल है, देखिए AB का जो अपोजिट एंगल है वो है एंगल C और AC जो है इसका अपोजिट एंगल एंगल B है। If sides are equal, if two sides of a triangle are equal, then the angles opposite to them are also equal, isn't it? अगर हमारे ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में बराबर है तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, इस साइड का अपोजिट एंगल एंगल C और इस साइड का अपोजिट एंगल एंगल B, वो भी आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि AB बराबर है AC, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे AB और AC के, तो वो भी आपस में बराबर होंगे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। वाई हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल्स opposite to two equal sides of a triangle are also
equal. Angles opposite to two equal sides of a triangle are also equal. अगर अब एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो क्या एंगल बी का हाफ एंगल सी के हाफ के बराबर नहीं होगा? क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/2 of angle B is equal to 1/2 of angle C? ये भी तो कह सकते हैं. अगर एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी? इसका भी आधा और इसका भी आधा बराबर होगा. इसको भी दुगना करेंगे, इसको भी दुगना करेंगे, बराबर होंगे. इसको 4 टाइम्स बनाएंगे, इसको 4 टाइम्स बनाएंगे, बराबर होंगे. तो अगर हम इसको भी हाफ करेंगे, एंगल बी को भी, और एंगल सी को भी हाफ करेंगे, वो भी आपस में बराबर होंगे. तो चलिए देखते हैं कि हाफ ऑफ एंगल बी कौन सा है. तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज हाफ ऑफ एंगल बी. और जो यहां इस तरफ यहां पे एंगल है वो भी हाफ ऑफ एंगल बी है. और ये जो एंगल है, this angle is half of angle C and this angle is also half of angle C because this is the bisector. जब हम bisector कहेंगे इसको तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा. तो ये तो 1/2 होगा एंगल C और ये एंगल 1/2 ऑफ एंगल B होगा. चलिए इसका नाम लिखते हैं. इसका नाम लिखेंगे क्योंकि ये 1/2 ऑफ एंगल B है तो OBC. तो एंगल OBC लिखेंगे. एंगल OBC इज इक्वल 1/2 ऑफ एंगल C. ये तो 1/2 ऑफ एंगल C है, ये एंगल C का निसफ है. तो हम इसका नाम लिखेंगे एंगल OCB. एंगल OCB, एंगल OCB. ये भी आपस में बराबर होंगे, isn't it? अब आप देखिए ट्रायंगल हमारे पास है OBC. तो इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि दो एंगल्स आपस में बराबर है. इसलिए जो इनके अपोजिट साइड्स होंगे, इस एंगल का अपोजिट साइड OC और इस एंगल का अपोजिट साइड OB, वो भी आपस में बराबर होंगे. द साइड्स अपोजिट टू टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल. जिस तरीके से हमने देखा यहाँ पे कि साइड्स बराबर थे, ट्रायंगल के दो साइड्स बराबर थे, इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो बराबर है. अब जो ट्रायंगल के दो एंगल हैं वो आपस में बराबर हैं और इनके जो अपोजिट साइड्स होंगे, इनके जो अपोजिट साइड्स होंगे इन एंगल्स के, तो वो भी आपस में बराबर होंगे. तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore OB is equal to OC. OB OC के बराबर होगा, isn't it? OB OC के बराबर होगा. या हम लिख सकते हैं OC is equal to OB, क्योंकि इस एंगल के अपोजिट एंगल OBC का जो अपोजिट साइड है, इस एंगल का जो अपोजिट साइड वो है OC. तो हम OC लिख सकते हैं. और इस एंगल OCB, ये एंगल, इसका अपोजिट साइड जो है वो है OB. तो हम लिख सकते हैं OC इज इक्वल टू OB. ठीक. या हम ऐसे भी लिख सकते हैं और OB इज इक्वल टू OC. इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया है कि OB इज इक्वल टू OC. OB इज इक्वल टू OC. चलिए जी, अब हमें पता चल गया OB OC के बराबर है. अब हम प्रूव करेंगे कि ये दो एंगल आपस में बराबर है. ये कैसे प्रूव हो जाएगा कि ये दो एंगल आपस में बराबर है? अगर प्रूव हो गए तो हम कह सकते हैं कि AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. तो चलिए हम देखते हैं कि ये दो एंगल आपस में बराबर कैसे निकलते हैं. इजी है. हम दो ट्रायंगल्स लेंगे क्योंकि ये दो एंगल जो है ये एंगल इस ट्रायंगल का हिस्सा है और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का हिस्सा है. तो क्यों ना हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे और
प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट निकली तो ये एंगल तो इस एंगल के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो चलिए हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। एक तो ट्रायंगल AOB और दूसरा ट्रायंगल AOC। चलिए इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, एक तो हम ट्रायंगल AOB लेंगे, दूसरी ट्रायंगल हम लेंगे AOC। चलिए इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, क्या कॉमन है। तो सबसे पहले तो OB OC के बराबर है, OB OC के बराबर है। अभी अभी हमने प्रूव किया है OB इज इक्वल टू OC, तो हम लिखेंगे OB इज इक्वल टू OC। इसको हम लिख सकते हैं प्रूव्ड एबो। चलिए जी, तो इस ट्रायंगल का OB और इस ट्रायंगल का OC आपस में बराबर है। उसके बाद हम दूसरा साइड उठाते हैं, इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का AC, ये भी तो आपस में बराबर है, ये तो गिवन है, because this was an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC, so we have AB is equal to AC, that's given। ये गिवन है, AB is equal to AC। आप गिवन में भी देख सकते हो AB is equal to AC, गिवन में है AB is equal to AC, तो ये भी हो गया। चलिए जी, एक तो हो गया OB is equal to OC, उसके बाद AB AC के बराबर, फिर बचा इस ट्रायंगल का तीसरा साइड AO और इस ट्रायंगल का भी तीसरा साइड AO ही है, तो AO is equal to AO common to both these triangles। AO is equal to AO, it is common to both the triangles। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई हो गया। सबसे पहले तो OB OC के बराबर था, फिर AB AC के बराबर था, और फिर AO कॉमन था, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इस ट्रायंगल की तीन साइड और इस ट्रायंगल की तीन साइड आपस में बराबर हैं, isn't it? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन या कहेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। चलिए जी, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOC के साथ, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC दोनों कॉन्ग्रुएंट है आपस में। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर नहीं है? यस, एंगल BAO we can write, therefore angle BAO is equal to angle BAO is equal to angle CAO। ये एंगल आपस में बराबर होंगे ना, एंगल BAO बराबर होगा एंगल CAO। एंगल CAO क्यों बराबर होंगे? CP/CT corresponding parts of congruent triangles। तो जब ये एंगल आपस में बराबर है, ये एंगल तो आपस में बराबर निकल चुके हैं, तो इसका मतलब हुआ AO is the bisector of angle A। AO bisects angle A। हम लिख सकते हैं therefore AO bisects angle A।
therefore AO bisects angle A। तो इस तरीके से हमारा दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया कि AO bisects angle A। पहला था OB इक्वल OC, वो भी निकल चुका है, और दूसरा था AO bisects angle A, वो भी हमने प्रूव किया। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 वो सॉल्व हो चुका है। अगर आपको कोई शक है, कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो उसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना जो डाउट है वो दर्ज कर सकते हो। तो फिर हम उसको आगे एक और वीडियो बना के उसका इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये ठीक से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।